الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. جی سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلی ایپیسوڈ کے اندر ہم نے لیسن نمبر 1 پڑھا تھا. آج انشاءاللہ تعالی اس لیسن نمبر 1 کے ہم کچھ دہرائی کریں گے. لیکن قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور تجوید یہی ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ. جس جگہ سے حرف نکلتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اور ہر حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے. جب تک حرف کو اس کے مخرج سے ادا نہ کیا جائے حرف صحیح ادا نہیں ہوتا. اور دوسری بات ہے صفات کے ساتھ ادا کیا جائے. صفت کہتے ہیں خوبیوں کو. ہر حرف کی اپنی اپنی خوبی ہے. مثال کے طور پر سا کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا یہ اس کی خوبی ہے. سین کو سختی کے ساتھ ادا کرنا یہ اس کی خوبی ہے. اسی طرح حروف مستعلیہ کو موٹا پڑھنا یہ ان کی خوبی ہے، اور باقی حروف کو باریک پڑھنا یہ ان کی خوبی ہے. اور ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کیا جائے. اصلی مخرج سے ادا کرنے میں ہم اس وقت کامیاب ہوں گے جب اس کی بار بار تکرار مشق کی جائے، پریکٹس کی جائے. اس کا مخرج کیا ہے اس مخرج سے ادا کرنے کی کوشش کی جائے. مخرج سے ہٹ کر حرف کو ادا کریں گے تو وہ ادا نہ ہوگا، یا ناقص ادا ہوگا، یا سرے سے ہی ادا نہ ہوگا. اس لیے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، اور تجوید یہی ہے کہ ہر حرف کو اس کے اصلی مخرج سے ادا کیا جائے. تو آئیے جو ہم نے سبق نمبر 1 لیسن نمبر 1 پڑھا تھا آج کچھ اس کی دہرائی کر لیتے ہیں. اس کے اندر دیکھیں کچھ حروف کے اوپر آپ کو زبر لگی ہوئی نظر آ رہی ہے، جیسے با ہے، تا ہے، سا ہے. ان کو آپ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اور جس حرف کے اوپر مد ہے جیسے جیم، شین، صاد، جن کے اوپر مدات آ رہی ہیں ان کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. اب یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ دیکھیں ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا، آج آپ اس کے ہم دہرائی کر رہے ہیں. حروف مستعلیہ اس میں 7 تھے. حروف مستعلیہ کو پر پڑھنا یہ ان کی اپنی خوبی ہے، یہ ان کی صفات ہے، صفت ہے. اب ان کو حروف کو ان کے مخرج سے ادا کیا جائے. جیسے الف ہے، اب الف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا. الف کا مخرج کیا ہے؟ جوف دہن، یعنی منہ کا خلا. منہ کے اندر جو خالی جگہ ہے اس کو الف کا مخرج بیان کیا گیا ہے، اور الف جو ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے. اسی طرح با ہے. با کا مخرج کیا ہے؟ دیکھیں آپ کے سامنے حروف کے مخارج کا نقشہ کھل چکا ہے. الف جوف دہن یہ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، جوف دہن یعنی منہ کا خلا. اس کے بعد با کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. دونوں ہونٹوں کے تر حصہ، یہاں سے ان کو جب آپس میں ملائیں گے تو با ادا ہوگا. اس کے بعد دیکھیں تا، یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں تا حروف نطعیہ اس کا لقب ہے، اور یہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. دوبارہ سمجھ لیجئے، زبان کی نوک اور اوپر کی دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے.
इसी तरह आगे सा है, देखिए सा का मखरज जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। ठीक, इसी तरह देखें आइन का मखरज ये लिखा है हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। आइन और हा ये एक ही जगह से अदा होते हैं। गाइन और खा ये देखें हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। हलक के 3 हिस्से होते हैं, एक नीचे वाला, एक दरमियान वाला और एक ऊपर वाला। जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहां से हमजा और हा अदा होते हैं और दरमियान वाले हिस्से से आइन और हा अदा होते हैं और ऊपर वाले हिस्से से गाइन और खा अदा होते हैं। इसी तरह कौफ और काफ इनमें फर्क भी करते चले जाएं। जबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से कौफ अदा होता है। तालू का नरम हिस्सा, अब तालू का नरम हिस्सा कौन सा होता है? तालू के आगे वाला हिस्सा या पीछे वाला हिस्सा। तो तालू के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ये नरम होता है, तो जबान की जड़ तालू के उस नरम हिस्से से लगेगी तो कौफ अदा होगा। और काफ जो है ये जबान की जड़ और तालू के सख्त हिस्से से, जो तालू के आगे वाला सख्त हिस्सा होता है उसके साथ जब इसको टच किया जाएगा तो काफ अदा होगा। इसी तरह हुरूफ शजरिया ये 3 हैं, जीम, शीन और या। ये जबान के दरमियान और तालू के दरमियान से अदा होते हैं। ठीक है, और दौत ये एक ही मखरज है जिसको हर्फ हाफिया भी कहा जाता है, इसका लक़ब है। ये देखें ये लिखा हुआ है, ये जबान की करवट साइड में जबान की करवट और ऊपर के दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। नीचे दांतों का नक्शा भी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखा देता हूं। और इसी तरह फिर आगे लाम, ये जबान का किनारा और दवाहिक से सनाया तक के मसूरों से अदा होता है। और नून ये जबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। रॉ ये जबान की नोक और मकाबिल के तालु से अदा होता है। इसी तरह हुरूफ नितईन हैं तो, दाल और ता, ये भी एक ही जगह से अदा होते हैं, जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होते हैं। इसी तरह हुरूफ लिसविया व जाल और सा ये जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। हुरूफ सौफिरिया ये भी 3 हैं, सौत, जा और सीन। ये जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। हुरूफ शफविया ये 4 हैं, हुरूफ शफविया ये 4 हैं, फा, बा, मीम और वाव। ये कहाँ से अदा होते हैं ये पहले भी बयान किया जा चुका है। बा का, फा का देखें ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से अदा होता है। ठीक है, और मीम दोनों होंठों के खुश्क हिस्से से अदा होते हैं और वाव ये दोनों होंठों की गोलाई से अदा होता है। अलिफ, वाव और या ये तीनों एक ही जगह से अदा होते हैं और इनका मखरज है जौफे दहन यानी मुंह का खला। ठीक है, इसके बाद ये नीचे खुशूम ये गुनने का बताया गया है। ये नाक का बांसा होता है, नाक के अंदर आवाज को ले जाना होता है गुन्ना। इंशाल्लाह ये आगे आएगा इसका चैप्टर, उसमें हम आपको इसके मुतालिक मजीद गाइड करेंगे। ये जौफी मखरज कहलाता है, तो इसमें आवाज को नाक के अंदर ले जाना होता है, ये गुन्ना कहलाता है। तो आइए अब हम आपको दांतों का नक्शा भी दिखाते हैं कि जैसे हमने अभी ऊपर बात की थी सनाया तक के, अनियाब तक के, ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं, सनाया कौन से होते हैं, अनियाब कौन से होते हैं, रुबाई कौन से होते हैं। ठीक है,
इसी तरह ज़बान का सिरा कौन सा होता है, ज़बान की करवट कौन सी होती है, ज़बान का किनारा कौन सा होता है, आइए हम आपको नक्शे में दिखाते हैं। जी सामीईन, ये देखिए दांतों का नक्शा आपके सामने मौजूद है। देखिए इसमें जो सामने के दांत हैं ये सनाया कहलाते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो दांत होते हैं रुबाई कहलाते हैं, देखें दोनों तरफ। और इसके साथ जो होता है ये नाब नोक वाला दांत कहलाता है, ठीक है। बिल्कुल सामने सनाया के दांत हैं और उसके साथ रुबाई के, उसके साथ नाब नोक वाला, और उसके साथ द्वाहिक होता है, यानी जिसको हंसने वाला भी कहा जाता है। ये जैसे इंसान मुस्कुराता है तो वो दांत फौरन नजर आता है, तो ये नोक के साथ वाला होता है, इसको द्वाहिक कहा जाता है। द्वाहिक भी कह सकते हैं इसको। और द्वाहिक के साथ तौहीन होता है दोनों तरफ, ठीक है। इसको पीसने वाला दांत भी कहते हैं। और तौहीन के साथ, ये तौहीन के 4 दांत होते हैं, 6 दांत हैं तौहीन के। ये 6 दांत जो होते हैं ये पीसने वाले होते हैं। और उसके बाद नाजिज आते हैं, पकड़ने वाले, नाजिज, ठीक है। ये नाजिज जो होता है ये दांत पकड़ता है, तो ये बिल्कुल एंड में होता है, जिसको हम दाढ़ भी कहते हैं, ठीक है। तो ये दांतों का कुछ नक्शा था, आपके सामने बयान किया। ये एक साइड दिखाई गई है, बिल्कुल इसी तरह इसके ऑपोजिट दूसरी साइड भी है, वो भी जिस तरह ये दांत हैं उसी तरह वही दांत हैं, बिल्कुल यही नाम। अब ये देखिए जो जबान का सिरा होता है, हमने ऊपर पढ़ा था कि जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। तो जबान का सिरा ये एक साइड पे, ये जबान का सिरा, ठीक है। तो ऊपर के दांतों, ये ऊपर के दांत हैं, इनके अंदरूनी किनारे से, ठीक है, ये जबान का सिरा कहलाएगा, ठीक है। ये ऊपर के दांत हैं, इसके अंदरूनी किनारे, जबान इसके अंदरूनी किनारे पे लगेगी तो सा अदा होगा, वा भी यहीं से अदा होगा, लाल भी यहीं से अदा होगा, ठीक है। जबान का सिरा यानी कि यूं समझ लें कि बिल्कुल ऊपर से छोड़कर थोड़ा सा नीचे ये जबान का सिरा होता है, ठीक है। और जबान की नोक बिल्कुल ये कॉर्नर पर ये नोक कहलाती है, उससे थोड़ा सा पीछे सिरा होता है, ठीक है। और इसी तरह जो एक और हमने पढ़ा था जबान की करवट वाला, दौद का मखरज, ये देखें आपको यहाँ पर दौद का मखरज भी दिखाते हैं। दौद जबान के करवट और ऊपर के दांतों के जड़ से अदा होता है, ठीक है। ये देखें ये दौद है, ये जबान की करवट, और ये ऊपर की दाढ़, ये दाढ़ें ऊपर की हैं, ये तौहीन, ठीक है, ये दाढ़ें हैं ऊपर वाली। तो जबान की करवट जब ऊपर की इन दाढ़ों के साथ लगेगी तो दौद का मखरज अदा होगा, ठीक है। तो ये हलक के नीचे 3 हिस्से दिखाए गए हैं, ठीक है। और ये अलिफ, वाव और या, ये जौफ दहनी मुंह का खला है, यहां से अदा होते हैं। और हलक के ऊपर वाला हिस्सा है जो बिल्कुल कौवे के साथ होता है, वो हलक के ऊपर वाला हिस्सा कहलाता है। इसी तरह फिर कौवे से जैसे जैसे हम नीचे आएंगे, ठीक है, वो दरमियान, उसके आगे वाला हिस्सा दरमियान वाला कहलाएगा, और उसके आगे वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा कहलाएगा, ठीक है। और ये हमजा हा हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं, आइन हा हलक के दरमियान वाले हिस्से से, और गैन खा हलक के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ सामीईन कराम, उम्मीद है आपको
یہ دانتوں کا نقشہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس کی دوبارہ آپ مشق کیجئے, دوبارہ اس کو ریپیٹ کیجئے. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو دوبارہ آپ کومنٹس سیکشن میں جا کر سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبق نمبر 1 اور ان کے یہ حروف اور مخارج تجوید کے ساتھ جس طرح پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالی اب ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, اس میں سبق نمبر 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.